So, good morning, students. Today, you are going to learn a new concept. What is the uses of concave mirror? In previous session, previous video, we have discussed about the refraction of light, plane mirror, and then about the spherical mirror and different points of the spherical mirror, like in a concave mirror, convex mirror, pole, center of curvature, radius of curvature, and focal length, focus, everything we have discussed in our previous session. So if you have not seen my previous video, just see the previous video once first and then come to this point. Okay, so in the previous session we have discussed about how the ray diagrams, how the images are formed with the help of the concave mirror. So today we are going to learn, you are going to learn about the uses of the concave mirror and convex mirror, images formed by the convex mirror, okay, and ray diagram of the convex mirror. So these points you have to cover in this video. So please be with your rounder, scale, and everything, whatever the material you need. Okay, so first of all, let us understand what are the uses of the concave mirror. So first of all, the concave mirrors are commonly used in the torches, searchlight, and vehicle headlights to get powerful beam of light. As you have seen कि हम concave mirror को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हमारे घर पे जो टॉर्च आती है, फिर बीम लाइट जो होती है, या फिर जो व्हीकल की लाइट होती है, आप देखते हैं पूरे जो पावरफुल बीम्स निकलते हैं उसके अंदर से, जैसे कि टॉर्च होती है, टॉर्च के अंदर से सपोज ये आपकी टॉर्च है, टॉर्च के अंदर से ऐसी पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलती है। इसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लाइट को प्रॉपरली देख सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है। नेक्स्ट, दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ द फेस। तो क्या क्या देख सकते हैं आप कि जनरली ये शेविंग मिरर्स के अंदर यूज होता है टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द फेस, ताकि आप फेस छोटा सा भी हो लेकिन वो बड़ा सा दिखे और आप अच्छे से शेविंग कर पाओ। इसीलिए ये कहाँ पे यूज होता है, शेविंग मिरर्स के अंदर। अगेन द डेंटिस्ट यूज टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ पेशेंट्स। जो भी डेंटिस्ट, आपको पता है कि डेंटिस्ट कौन होते हैं, जो दांत वगैरह, आपके दांत में कभी कभार जो चोट लग जाती है या फिर कुछ दांत टूटने लगते हैं, ऐसा कोई इश्यू होता है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो। तो डेंटिस्ट क्या यूज़ करते हैं, एक छोटा सा वो मिरर यूज़ करते हैं। एक्चुअली वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर। जैसे ही वो यूज़ करते हैं उसको वो दांत क्या लगता है, बड़ा लगता है, एंड इजीली वो डेंटिस्ट उसको प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर पाएगा। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेसेस के अंदर बड़े से कॉनकेव मिरर्स को यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या किया जाए, कॉन्सेंट्रेट किया जाए। आपको पता है कि कॉनकेव मिरर है वो क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, सारी लाइट्स को कन्वर्ज करते हैं, एक पॉइंट पे फोकस करवाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को वहाँ पे क्या किया जाता है, कन्वर्ज मतलब कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, और कॉन्सेंट्रेट करने के बाद more and more heat they can produce. Okay, so these are the uses of the concave mirror. Please note it down. And next we are moving on to the next point, that is the convex mirror. So in that you have to learn about the convex mirror and the rules of the convex mirror. I hope you have taken a screenshot of this. So now let us move again to the next point, which is the rules which you have already learned for the concave mirror. Now you have to learn about the concave mirror. Okay, so the rules are the same, but the difference is what, concave mirror, as you know, concave mirror is converging mirror and convex mirror is, as you know, is the diverging mirror. So let us see the difference. What is the difference between these two mirrors? Okay, so first of all, let us write rules for कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ठीक है। तो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर या फिर रूल्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ये एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। कॉनकेव के बारे में भी लिखवाया था, वो भी एग्जाम में नहीं आता, इसको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है, समझने के लिए है ये, इसको यूज करना है सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे।
ऐसा होता है कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स वाली, ये है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इस साइड होगा, क्योंकि ये सर्कल यहाँ पे फॉर्म करेगा, इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा आपका पोल, ये हो जाएगा आपका फोकस, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। तो फर्स्ट रूल क्या था, हम याद करो कॉन्केव मिरर के अंदर की रे ऑफ लाइट व्हेनेवर इट बिकम्स पैरेलल, it incident parallel to the principal axis, it reflects back along with the focus. कहाँ से पास होगी वो, फोकस में से पास होगी, passes with the focus after reflection, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस में से पास होगी, यही नियम है यहाँ पे, कोई और नया नियम नहीं लाए हम, यहाँ पे भी सेम चीज, लेकिन फर्क क्या है, देखिए ये इंसिडेंट हुई ये रे, अब ये कहाँ से पास होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, पास कहाँ से होगी, फोकस में से पास होगी, बट ये जो पास हो रही है इट अपीयर्स टू बी, एक्चुअली यहाँ से पास होगी नहीं, लेकिन इट अपीयर्स टू बी, और यहाँ से ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका रूल लिखते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, when a ray of light passes through a convex mirror, when a ray of light passes through a convex mirror, एक मिनट बीच में कुछ रह गया है, when a ray of light parallel to the principal axis passes through a convex mirror, कॉन्वेक्स मिरर में से पास होती है, कॉन्वेक्स मिरर अब क्या हो जाएगी, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, इट, यहाँ पे देखो ये डॉटेड लाइन बनाई हुई है मैंने, डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, इट अपीयर्स, सो इट अपीयर्स टू डाइवर्ज from the principal focus, which is capital F, after reflection, ठीक है, ये हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्लियर। जब भी ये रे पैरेलल, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तब वो रिफ्लेक्शन के बाद इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ प्रिंसिपल फोकस, ऐसा लगता है कि ये यहाँ से जा रही है प्रिंसिपल फोकस में से, बट एक्चुअली ये अंदर नहीं जाती, ये अपीयर होती है ऐसे, लेकिन जाती कहाँ से, बाहर से ही, वो डायरेक्टली डाइवर्ज हो जाती है। चलिए सेकेंड वाला रूल देखते हैं कि व्हाट द सेकेंड लॉ स्टेट्स अस, कि यही वाला, कि क्या था इसका उल्टा, इनवर्स रूल, कि प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी और इट अपीयर्स टू रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम दी, क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए तो यहाँ पे देखिए आप, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगेन ये हो जाएगा आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपकी रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो रही है, कहाँ पे स्ट्राइक हो रही है, फोकस में स्ट्राइक हो रही है, ठीक है, तो यहाँ फोकस पे स्ट्राइक होगी, फोकस पे स्ट्राइक होगी तो वो वापस कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वापस जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी रे ऑफ लाइट यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर पे ऐसे अपीयर हो रही है कि वो डायरेक्टली फोकस पे स्ट्राइक करेगी, तो वो रिफ्लेक्शन कहाँ से करेगी, पैरेलल टू द
प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब लिखते हैं इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में लिखते हैं इसके कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन a ray of when a ray of light directed towards कहाँ जा रही है? directed towards principal focus कहाँ जा रही है? directed towards the principal focus। किसके principal focus पे? principal focus of a कौन सा मिरर है? convex mirror of a convex mirror, it will emerge parallel to the principal axis of after reflection। क्या होगा? ये क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। It will emerge parallel to the principal axis after रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? अगर वो आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्टली स्ट्राइक कर रही है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, तो वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा उसका? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए ये दोनों चीजें आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ करती हूँ। थर्ड वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर थर्ड पॉइंट सीज अस। थर्ड वाला पॉइंट क्या था? याद करो, यहीं पे भी वो सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वो सेम होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी। कहाँ से पास होगी आपकी रे ऑफ लाइट? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा? डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको ऐसा लगता है कि आपकी रे ऑफ लाइट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में है। ठीक है, ऐसे। तो जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगी? वापस आएगी। जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में वो वापस आएगी अलोंग विद द सेम पाथ। समझ में आया? यहाँ पे अपीयरेंस शो करना है हमें, इसीलिए इसको हम डॉटेड लाइन से, ये क्या है? रियल रेज नहीं है, दिस इज द वर्चुअल रे, दिस इज नॉट द रियल रे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। चलिए तो लिखते हैं स्टेटमेंट कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के। इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा यहाँ पे? After reflection is reflected back along the same path. After reflection के बाद क्या होगा? After reflection it comes, after reflection is reflected या फिर it comes along the same path, या फिर is reflected लिख देते हैं। It reflects, after reflection it is reflected along the same path, वही पाथ से वो क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। तो ये है हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर के पॉइंट की। आपको पता है कि डायरेक्टली वो क्या करती है? पोल पे स्ट्राइक करती है। कहाँ पे स्ट्राइक करती है? पोल पे स्ट्राइक करती थी, तो वहां पे सेम एंगल बना के वापस आती थी। यहाँ पे भी वही सेम चीज होगी, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, ना लिखा हो तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके फिर से उसके स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रही है आपकी रे ऑफ लाइट में? ये पी थोड़ा यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है,
ताकि मैं डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर सकूं। तो ये यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसी एंगल से वो क्या करेगा, वापस जाएगा। आई एंड आर, ये यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इट फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से ये क्या करेगी, वापस जाएगी। चलिए, तो अ रे इंसिडेंट क्या होगा, जैसे ही वो इंसिडेंट करेगी, इंसिडेंट डायरेक्टली ऑन पोल, क्या करती है, पोल पे डायरेक्टली स्ट्राइक करती है, डायरेक्टली ऑन पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ अ convex mirror, the incident ray and reflected ray, the incident ray and the reflected ray कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे follows the law of reflection, follow the law of reflection, follow the law of reflection, follow the law of reflection। ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करेंगे एट कौन से पॉइंट पे, एट पी, कौन से पॉइंट पे, पी पे, मेकिंग इक्वल एंगल, क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वल एंगल बनाएंगे, मेकिंग इक्वल एंगल विथ किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, विथ प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गए 3 and 4th लॉ। आपको ये सिर्फ समझने के लिए लिखना है, इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ गए। एक बार तो आपको रे डायग्राम्स ड्रॉ करना इजीली आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन या फिर रे डायग्राम के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए इसको। अब देखिए, जैसे हमने वहाँ पे कॉन्केव के अंदर 6 अलग अलग रे डायग्राम्स बनाए थे, इसमें आपको इतने सारे नहीं है, बच गए आप लोग। इट्स इजी फॉर यू, ओनली 2 रे डायग्राम्स आर देयर। एक लेना है हमें इंफिनिटी पे और दूसरा लेना है हमें पोल पी और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी, ठीक है। हमारी 2 ही कंडीशंस है यहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पे एट इंफिनिटी, कहाँ पे है ये, हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, और दूसरी कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर, मतलब आपकी मर्जी जहां पे भी रखो, बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन पोल कैपिटल पी एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी और पोल पी के बीच में आप कहीं पे भी रखो। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर देंगे। चलो कर देते हैं, कर दिया, ठीक है। नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड्स दिखा देते हैं, हाँ भैया दिखा दी हमने। अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे। ये हो गया हमारा P, ये हो गया F और ये हो गया C। क्लियर, ठीक है। ये हो गया अपना एपर्चर MN। अब क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, आप सोचो यहाँ पे कहीं पे दूर एक इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, दैट आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा वाला ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। AB नाम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है बहुत ही दूर। तो सबसे पहले फर्स्ट रे जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, इससे पैरेलल लेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप सोचो कि अगर ये लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से
पैरेलल है, कहां से पास होगी, पास तो होगी लेकिन फोकस में से पास होगी, वैसी अपीयर होगी, इट अपीयर्स टू बी पास, कैसे कि फोकस में से वो पास हो रही है, ऐसी अपीयरेंस मिलेगा। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड रे, ये भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, क्या होगा, इट सीम्स टू बी पास या फिर इट अपीयर्स टू बी पास, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कहां से पास होगी, फोकस में से पास होगी। अब इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, जहां पे आपके दोनों पॉइंट्स मीट कर रहे हैं, जहां पे आपको दोनों पॉइंट्स मिलेंगे वहां पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो चलिए इमेज कैसी बनेगी, सबसे पहले कि इमेज फॉर्मेशन, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ इमेज कैसी फॉर्म होगी, इमेज आपकी सबसे पहले पोजीशन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर ऑन द फोकस, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे एट एफ बिहाइंड द मिरर, फोकस पे होगी और बिहाइंड द मिरर होगी। नेक्स्ट साइज क्या होगी, आप सोचिए यहाँ पे देखिए साइज कैसी है, बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, ये इमेज आपकी बहुत बड़ी है, ऑब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा है, लेकिन उसके कंपेयर में ये जो इमेज है वो बहुत ही ज्यादा छोटी इमेज है, इसीलिए हाईली डिमिनिश्ड, कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। थर्ड पॉइंट, नेचर कैसा होगा इसका, आप सोचिए ये कैसी रे है, इज दिस अ रियल रेस, नो इट इज द वर्चुअल रेस, तो वर्चुअल रेस से इमेज बन रही है तो आपकी क्या होगी, इमेज वर्चुअल होगी, और वर्चुअल होगी तो उसके साथ साथ कैसी होगी, इरेक्ट होगी, क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। चलिए अब दूसरी जगह पे बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटी, पोल एंड इंफिनिटी, पोल से लेके इंफिनिटी तक आप अपना ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, ठीक है। चलिए हम रख लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर भैया, चलिए अच्छे से ये कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, ओके। तो ये हो गए हमारे एम एन, जिसे हम क्या कहेंगे अपने अपर्चर, ये हो गया अपना पोल भैया पी, ये हो जाएगा अपना फोकस और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, पोल से लेके इंफिनिटी तक कहीं पे भी रखो। चलो मेरा मन कर रहा है मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूँ, ए बी, मैंने यहाँ पे रख दिया अपना ऑब्जेक्ट। सबसे पहली रे कहाँ से पास होगी, आपको पता है, सिंपल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। अगर ये रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो पास कहाँ से होगी, इट अपीयर्स टू बी पास्ड फ्रॉम द फोकस। क्लियर, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए बात करते हैं। देखिए आपको थोड़ा बहुत मामला गड़बड़ है, यहाँ पे बहुत ही बड़ी लाइन ड्रॉ करनी है हमें, ठीक है। तो ये आप देखिए, आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा, ये बोर्ड है इसीलिए मेरे पास इतनी बड़ी स्केल भी नहीं है। तो एक यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट पे आपकी इमेज मिलेगी आपको, ठीक है। कैसी मिल रही है इमेज आपकी, छोटी मिल रही है इसकी कंपेयर में, तो बी डैश ई डैश। तो देखिए इमेज कैसी मिलेगी, यहाँ पे आपको डिमिनिश्ड मतलब छोटी मिलेगी, एज वेल एज कहाँ पे मिल रही है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, कहाँ पे मिल रही है, पोल एंड फोकस के बीच में मिल रही है, और नेचर कैसा होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। समझ में आया, चलिए तो लिख देते हैं पोजीशन क्या होगी यहाँ पे इमेज की, पोजीशन बिटवीन P and F बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे मिलेगी, बिटवीन P and F बिहाइंड द मिरर। साइज क्या होगी, साइज यहाँ पे क्या होगी,
डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगी, ये तो पॉइंट साइज जितनी हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो छोटी है, इसीलिए क्या लिखेंगे हम, डिमिनिश्ड मतलब छोटी। और नेचर कैसा होगा इसका, नेचर होगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर अबाउट दी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम्स हो गए ये दोनों के क्लियर। कुछ भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, कॉन्टेक्ट मी, ओके। तो ये हो गई बात ऑब्जेक्ट्स के बारे में। आप लिख लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से, 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, मोर देन इनफ है। 3 बार प्रैक्टिस करने से ये अपने आप ही आपको आ जाएगा। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, रूल्स समझ में आ गए, आप इजीली इसको बना सकते हो। अब मुझे पता है आप लोग बड़े मतलब इंटेलिजेंट टाइप बच्चे हो, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर लेते हो, तो ये अच्छे से बनाइए आप लोग और करिए, ट्राई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। So now let us discuss about the uses of the convex mirror। तो convex mirror के uses क्या है सबसे पहले, तो convex mirror is used in as a rear view mirrors in vehicle। आप vehicles तो चलाते ही होंगे आप लोग, कोई स्कूटर, बाइक, एक्टिवा, वॉटेवर आप कुछ भी चलाते हो, कार वगैरह, तो उसके आगे आपका जो रेयर व्यू मिरर आता है, रेयर व्यू मिरर के अंदर आपको क्या दिखता है, यहाँ पे व्हीकल्स, पीछे से जो व्हीकल्स आते हैं वो व्हीकल्स देखने के लिए काम आता है। क्यों यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ही लगाया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा, हमने इससे प्रीवियस में बात की कि कॉन्वेक्स मिरर आपको हमेशा क्या देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है। कैसे देता है, इरेक्ट इमेज देता है, मतलब सीधी, आपका ऑब्जेक्ट सीधा है तो आपको वो सीधा ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ऑलवेज गिव इरेक्ट इमेज, इसी वजह से वहां पे व्हीकल्स में क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। बट कैसे दिखते हैं, छोटे। आप देखना कभी भी ड्राइव कर रहे हो, आप ट्राई करना कि आपका जो रेयर व्यू मिरर है, रेयर व्यू मिरर के अंदर आप पीछे के ऑब्जेक्ट्स जैसे ही देखोगे तो उसके अंदर आपको लगेंगे कि हाँ वो ऑब्जेक्ट सीधे हैं, लेकिन वो कैसे होंगे उसके कंपेयर में, छोटे दिखेंगे। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं वो एक्चुअली ऐसे कर्व होते हैं, है ना, ऐसे कर्व होने की वजह से, बाहर की साइड कर्व होने की वजह से ये हमें वाइड फील्ड ऑफ रेंज देते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करवाते हैं। इसी वजह से ये ड्राइवर्स जो यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लेन मिरर्स लगाएंगे तो प्लेन मिरर जितना एरिया इतना है उतना ही कवर करेंगे, लेकिन ये जो कॉन्वेक्स मिरर्स है, ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करेंगे, हमें बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, इसकी वजह से ये हमें वाइड व्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर एंड यूजेस ऑफ द कॉन्केव मिरर। सो just I'm just ending this video for today now, okay। So please prepare this ray diagrams, that is most important, and it is quite easy, you can easily gain 2 marks, okay, for that। So thank you very much।